this civilization had been at the height of its glory for at least 2000 years, where we had the highest GDP almost in the world's GDP together. And we lost all that rich knowledge tradition which had allowed us to have sustained prosperity of 24% of the world's GDP for 2000 years. जो ब्रह्मांड में है वही हम में है। हम में और ब्रह्मांड में अंतर नहीं है। नमो रसानाम प्रभुवे रत्नानाम प्रभुवे नमः, नमः क्षणानाम प्रभुवे कलानाम प्रभुवे नमः। The dignitaries to occupy their seats on the stage to grace the valedictory function. I request Professor Vijay Shankar Shukla ji to kindly come and take the seat. Vijay Shankar Shukla ji is a former director of IGNCA Varanasi chapter. I request Professor Vikas Dubey, Dean R&D IIT BHU, to take the seat, and I request Dr. Anuradha Chaudhary ji, Coordinator, Indian Knowledge System Cell, to take the seat. I request Dr. Anuradha ji to come and share her remarks of this 2 days conference, and then we'll move ahead. So namaste, one and all, and a very warm welcome to all the dignitaries on the stage and off the stage. So we've had these 2 days on Bharatiya Rasayana Shastra under the aegis of the program called Dhara by the Ministry of Education in collaboration with the Ministry of Culture. And this is part of the IKS division's initiative to promote the different knowledge traditions. And one of the highlights of this event especially was the presence of so many school children who are going to be the future of this country in 2047. So we were very happy that you took part in this and very actively participated in this program that talked of various dimensions and applications of Indian chemistry, Bharatiya Rasayana Shastra, something that you would not have possibly even thought of, because we talked of starting from the medicinal aspect of it. We then looked at the application also in the colors. We looked at it in the art forms. In the colors, we were seeing how these natural dyes are used, the natural colors are used for makeup, for Kathakali dance. So we had these various speakers who were talking of these significant contributions and these traditions that have sustained for such a long time in our country. This morning we were looking at the construction, so the application of chemistry in construction. We looked at it also again in colors, but this time in textiles and on paper, on the mural walls. So we've been looking at how yesterday we also looked at the perfumery and cosmetics. We also looked at how in the city of Banaras, through the cultural activities, we just saw that in our cultural activity that was there before, as well as in yesterday's, where they talked about the Banaras, the city of Banaras, and the upcoming festival of Holi. So we saw how the importance of bringing in natural colors, natural lifestyle, and which is deeply connected with the philosophy underlying every Shastra that has come out in this land. We had a session by the Vice Chancellor of Sampurnananda University and also Neelam Gupta ji, who talked about how the underlying philosophy plays an important role in helping us look at the world in a different way. And as we look at the world in a different way, we relate to nature in a different way. We relate to each other in a different way, and we build a much healthier lifestyle that is sustainable in every respect. So these were some of the key points that came out in this 2 days conference. And I think what is important for the children to take away from here, all the esteemed guests, as well as those listening to us online, is the fact that this civilization had been at the height of its glory for at least 2000 years, where we had the highest GDP almost in the world's GDP together. And we lost all that rich knowledge tradition which had allowed us to have sustained prosperity of 24% of the world's GDP for 2000 years. When you think of it, it's not a small time for a civilization to have sustained prosperity, which could only happen on the foundations of very detailed knowledge traditions. What were those? Those are not brought into the education system. So in the NEP 2020, we are looking at how to reintroduce these awareness about these knowledge traditions in the education curriculum, which is one of the big efforts that we are doing through the IKS division. And we have several programs that Professor Ganti Murthy, our national coordinator, had spoken about in the inauguration. So we welcome all of you to take part in this,
to to have a more active enthusiasm, interest in being inheritors, proud inheritors of a knowledge tradition which was not just valuable in the past, but which has a lot of future research can happen on the basis of all these knowledge traditions. So all the very best, and thank you very much to Professor Ramanathan ji for having hosted this event in IIT BHU, and all the IITs are leading institutes that are trying to evolve products and evolve concepts that will be for the future of mankind. So if we can have more research on these topics, then I think we will be able to contribute something very majorly in the development of the world and for mankind as we go ahead. So thank you very much. It's indeed our pleasure to have hosted this Dhara event at this institute. But without the support of the institute and the administration, it's indeed a dauntable task, an impossible task. And in that series, I would say our guest of honor, who is Professor Vikas Dubey, gracing the valedictory ceremony, has been one of the supporting pillars right from the day one when we heard from Dr. Ganti Murthy that will you be in a position to support this event or not. So Professor Vikas Dubey has been kind of my fallback support for every small details of this event that I have offered on bothering him, and he has been kind enough to accommodate all my untimely requests and also on a very short notice to come and grace this valedictory occasion. So I request him to kindly address the gathering and share his remarks on the Bharatiya Rasayana Shastra. As you know, Indian tradition and heritage, making students and people aware about Indian knowledge system, this is one of the aim of the event, and we have very rich heritage in terms of chemistry and material science. We all know that Indians were knowing about chemistry even 5,000 years back. In Harappa and Mohenjo-daro, we have seen people, clay potteries colored with different color, and probably they were knowing the chemistry of color. And since thousands of years, we know about chemistry of bhasm and different minerals, and we are using it for various treatment, etc. So I'm sure that a lot of these things are covered in this event, and that would be very useful to take the studies further in this direction. India is known for its knowledge in terms of Ayurveda. We have been very rich in understanding the phytochemicals and its chemistry and its application in various diseases. We have our traditional knowledge in terms of medicinal chemistry and how phytochemicals can be used for various therapeutic applications. So we have very rich traditional knowledge, and I'm sure that the discussion on this traditional knowledge is very useful to take it forward and support it scientifically with various studies. So I'm really glad that Institute has taken this initiative, and Dr. Ramanathan was lead person. And on behalf of Institute, I thank Dr. Ramanathan for taking this initiative. And of course, the Indian Knowledge System, support from Indian Knowledge System and Ministry of Culture is acknowledged. Thank you very much. Thank you very much, Professor Dubey. As I said, it was indeed a pleasure working with you at every step of this conference. And I now request Professor Shukla to come and address the gathering. भारती भी सजोषा इडा देवैर मनुष्येभिरग्निः सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक् तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं सदन्ति चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतस्तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणीं वीणाकरां भजे। परम सम्मान्य, आज इस सारस्वत कार्यक्रम के पूर्णता के अवसर पर
सारस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर विकास दुबे जी, इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अधिष्ठाता, इसकी समन्वयिका, जो भारतीय ज्ञान परंपरा एकक की संयोजिका हैं, डॉक्टर अनुराधा चौधरी जी, और यहाँ पर इस कार्यक्रम को जो इस रूप में प्रस्तुत किया गया उसके संयोजक डॉक्टर वी रामनाथन जी। यह और भी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर IKS के राष्ट्रीय समन्वयक, नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर घंटी मूर्ति जी विराजमान हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिजीत जी उपस्थित हैं और काशी की संस्कृति को प्रस्तुत करने में जिस संस्था का विशेष योगदान है, ज्ञान प्रवाह, उसके उपनिदेशक डॉक्टर नीरज जी भी यहाँ उपस्थित हैं। और इस संपूर्ण आयोजन का जो मूल तत्व है, जो भारत में उपस्थित होता है, जिसके लिए उपस्थित होता है, सारी दार्शनिक प्रणाली जिसके कारण बिल्कुल से एक नए स्वरूप को प्राप्त हो जाती है, वह है आयुर्वेद शास्त्र। और उसके पूर्व अधिष्ठाता प्रोफेसर CB झा जी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं आप सबके नाम से ना परिचित होने के कारण सबको संबोधित नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अत्यंत विशेष रूप से अनुग्रहित हूँ कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के समापन के अवसर पर मुझे स्मरण किया। विशेष रूप से इस नाम से धारा, यह नाम कभी कभी स्पंदन करता है। 11वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े राजा हुए। बच्चों के लिए ये कहानी बता के मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। उनका नाम था महाराज भोज। तो महाराज भोज के समय में खुद वो कितनी विद्याओं के ज्ञाता थे, उसमें यह विद्या भी थी। तो वो यह सुनना चाहते थे कि यदि मैं ना रहूँगा तो ये सारी विद्याओं का स्वरूप क्या होगा। तो उन्होंने अपने कवि से कहा, उनके कवि का नाम था कालिदास, कि आप मुझे वह कविता सुनाइए जो मेरे ना रहने पर। तो उन्होंने कहा मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि मैं यह कार्य ही नहीं कर सकता, मानूंगा ही नहीं कि आप नहीं हैं। तो उनका तब तो आपको मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है। तो उनका ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए, उनको स्मरण हुआ तो उनका खोजना चाहिए कालिदास को। तो उनको खोजते हुए वो गए गुप्त वेश में, और उन्होंने पहचान लिया कि कालिदास हैं, लेकिन कालिदास उनको नहीं पहचान पाए। तो उनका आप कहाँ से आ रहे हैं? उनका मैं धारा से आ रहा हूँ। उनका महाराज भोज का क्या समाचार है? कहन वो तो दिवंगत हो गए। अरे, तो उनके मुख से अचानक निकला, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। आज तो जो है सरस्वती का जो स्वरूप था वह नष्ट हो गया, निराधार हो गई। तो महाराज भोज ने कहा मैं यही तो सुनना चाहता था आपसे, आप नहीं सुना जा रहे। उनका नहीं, आपने गलत सुना, मैंने ये कहा ही नहीं है। मैंने तो कहा कि अद्य धारा सदा धारा सदा लंबा सरस्वती। तो ये धारा का जो कार्यक्रम है, ये भारतीय विद्या को जो आश्रय प्रदान कर रहा है, जो प्रौद्योगिकी पर चिंतन करने वाले हैं, जो उस पर सोचने वाले हैं, उनको कैसे पता लगे कि हमारी भारतीय परंपरा हमको यहाँ तक कैसे ले आई। इस बात को समझने के लिए, इस तत्व को जानने के लिए अपनी परंपरा को जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हमने जो है छोटी छोटी बातों से जो है वो हम यहाँ तक पहुँचे। सबसे बड़ा रस क्या है? आनंद रस है, परमार्थ रस है।
उस रस की प्राप्ति के लिए जो है, क्योंकि उसी से सारी प्राप्ति होती है। हमारे उपनिषद कहते हैं आनंदाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ति, सारे जो तत्व हैं जो है वह उसी से उत्पन्न हैं। तो उस तत्व का जो अन्वेषण है वो कहाँ मिलेगा? हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में मिलेगा। तो हमारी जो दार्शनिक प्रणाली है, जो दार्शनिक चिंतन है, उसमें जो इस कार्यशाला का जो विषय है वो मुख्य रूप से 3 तत्वों में आकर के उपस्थित हो जाता है। 3 तत्वों के दर्शन को देखें, निश्चित रूप से उसके प्रथम तत्व पर यहाँ बहुत व्यापक चर्चा हुई होगी। वह क्या है? द्रव्य। दूसरा तत्व क्या है? कोई अलग नहीं है, सब एक में गुथे हुए हैं। लेकिन हम इतना जब आगे आ जाते हैं तो हम अपने पीछे वाले का स्मरण नहीं करते कि हमें ये मिला कैसे। दूसरा है धातु। और द्रव्य और धातु के जब बात आगे बढ़ते हैं तब जो है रस की चिंता करते हैं, रस की चिंता करते हैं। तो हम इसलिए इस बात पर नहीं जाते अपने पारंपरिक ज्ञान पद्धति पर, क्योंकि एक बार क्या हुआ, हमारे एक बड़े गुरुकल्प आचार्य हैं, आप लोग जानते होंगे, उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल और मैथमेटिकल वर्क्स की बिब्लियोग्राफी बनाई 1960s में, प्रोफेसर एस.आर. शर्मा, प्रोफेसर ए.के. बाग के साथ में। तो हमारे एक मित्र ने कहा कि हम एक ग्रंथ संपादित करना चाहते हैं, उसका ट्रांसलेट करना चाहते हैं, उससे हम भूकंप का पता लगा लेंगे। जो 13th सेंचुरी ऑनवर्ड जो भारत का काल है, भारत का जो समय है, लगभग 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं शताब्दी तक, इन वर्षों में हमारे यहाँ जो है कंपाइलेशन का काम शुरू हुआ, संग्रह ग्रंथ आए। हमने अलग अलग क्षेत्रों में जो है वह संग्रह ग्रंथ लिए। उसमें हमने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में जो है, हमारे एक 11th सेंचुरी में 2 राजा थे, वो और उनके पुत्र, महाराज बल्लाल सेन और उनके पुत्र लक्ष्मण सेन। तो उन्होंने जितने भी उस समय के प्रकाशित ग्रंथ थे एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, उन सब का एक संग्रह ग्रंथ तैयार किया जिसका नाम है अद्भुत सागर। इसी बनारस से 1902 में वह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। अब नहीं जानते क्योंकि उपलब्ध नहीं है, उसका जो अनुवाद आया है वो भी इतना समझ। तो हमने कहा उस ग्रंथ को अगर हम संपादित करके प्रस्तुत कर देंगे तो हम भूकंप का पता लगा सकते हैं। तो उनका अब तो बहुत सारी मशीनरीज आ गई हैं, अब तो इस ग्रंथ से आप क्या पता लगाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम इतने आगे आ गए साइंटिफिक डेवलपमेंट में कि हम अपनी पारंपरिक ज्ञान पद्धति जिसने हमें चिंतन सोचने के लिए उपस्थित किया, तो उसको हम भूल गए। हमें उस परंपरा अब भूल इतना गए कि हमारी जो द्रव्य की अवधारणा है, तो अब द्रव्य को हम किस रूप में लेते हैं। हाँ, अगर सामान्य विषय में अगर चिंतन करते हैं, द्रव्य को कहते हैं ये वस्तु है, हाँ, ये मटेरियल है, ये द्रव्य है। द्रव्य के उस स्वरूप पर नहीं जाते। एक और अर्थ ले लेते हैं कि हमें द्रव्य चाहिए, अर्थात अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए। तो द्रव्य के जो वास्तविक अर्थ है जो है वह, उससे हम बहुत ज़्यादा हट गए। हम उस रूप में चिंता नहीं करते। जिस द्रव्य के जो मेटेरियलिस्टिक जो उसकी मीनिंग है उसको हम छोड़कर आगे नहीं बढ़ते, और अर्थ में भी हम इकोनॉमिकल अफेयर्स में रह जाते हैं, जबकि वहाँ द्रव्य जो है वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ के रूप में भी तो उपस्थित हो जाता है। और उससे जो अंतिम पुरुषार्थ है, परमार्थ जो है, वह उसी की अवधारणा से हमें आगे बढ़ता है। उसी अवधारणा में हमें 5वीं शताब्दी में ही, आज से 1500 वर्ष पहले ही हमारे विद्वानों ने कहा नहीं, यह कोई ऐसी चीज नहीं है, यह वह पदार्थ, यह वह तत्व है जिसका सभी आश्रय ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि द्रव्यम भव्य गुणाश्रय, इसमें सारे जो गुण जो हैं इसी के आश्रय को प्राप्त करते हैं। और हमने उस तब भी जो है, हम और आगे बढ़े तो हमने उस रूप को नहीं देखा। हमारी जो ज्ञान रूपिणी शक्ति है,
जो हमें चिंतन का आश्रय देती है, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि कहाँ से हमें प्राप्त होता है, वह हमारी जो है वाग देवता है। तो वाग देवता इस तत्व को और थोड़ा सा स्पष्ट कर देती है। ऋग्वेद में कुछ सूक्त हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनसे सारी विद्याएं जो है, सारी विद्याओं का दोहन किया जा सकता है, कोई भी विद्या हो। क्योंकि उसके तार खींचने की आवश्यकता है, हम कितना बढ़ाते जाएंगे। एक तार जो है सोने या चांदी का छोटा होता है और उसको स्वर्णकार खींचता हुआ चला जाता है। हम आप नहीं खींच सकते, लोहार नहीं खींच सकता, तो हम सब लोहार हैं तो हम सब नहीं जानते हैं। तो वहाँ एक मंत्र में बहुत ही अच्छा मंत्र है, बहुत ज़्यादा अधिक मंत्र नहीं है वाक सूक्त में, लेकिन एक में है कि अहम दधामि द्रविणम हविष्मते। वहाँ द्रविण शब्द किसके लिए? द्रव्य के लिए, मैटर के लिए आया। और आया क्या, किसको? वो कहती है कि जो यजमान जो है, जो एक तरह से आप ऋषि समझ लें, जो यज्ञ करने वाला है, वो जो आहुति देता है, उसके लिए मैं क्या करती हूँ? धन की वर्षा करती हूँ। तो धन का मतलब वो ये नहीं है, वो धन की व्याख्या द्रव्य के रूप में जब हम आगे करते हैं तो उसकी एक बड़ी फिलॉसफी है जो कि हमें वर्षा के जल से होकर के, वनस्पति से होकर के, इन सब में प्राप्त होती है। तो ये जो यह दर्शन जब हमारे वैशेषिक में आता है, न्याय वैशेषिक में आता है, तो एक अलग अलग व्याख्या के साथ आता है। तो वहाँ कहते हैं कि ये द्रव्य क्या है, जिस द्रव्य के साथ में हम उसको दार्शनिक प्रस्थान में कहते हैं, तो कहते हैं कि जो अग्नि है, जो तेज है, वस्तुतः यह द्रव्य है। तो जो 9 एक तरह से मैटर उसको क्लासिफाई किया गया, उसमें ये प्रधान रूप में आया। और इसमें एक और अर्थ आया, इसमें एक और बहुत अच्छा मंत्र है जहाँ ऋग्वेद का, जिसमें सारा जो ये जितना पदार्थ है ये कहाँ कहाँ से उत्पन्न होते हैं, अग्नि का जो स्थान है, कहाँ से आता है अग्नि। तो वो मंत्र है, बच्चे सुने रहेंगे तो कभी ये आएगा, वो है तो कठिन कि त्वम अग्ने द्युभिः त्वमासु सुक्षुणिः त्वम अद्भयस्त्वम अस्मनस्परि त्वम वनेभ्यस्त्वम औषधीभ्यस्त्वम नृणाम नृपते जायसे शुचि। अर्थ है कि जो अग्नि है, जो तेज है, वो जो बिल्कुल से अपनी पूरी शक्ति के साथ उपस्थित होता है, कहाँ कहाँ से होता है? तो उसमें क्या है कि मेघ के बीच से होता है, समुद्र के बीच से होता है, जल से होता है, और कहाँ हो दो जाए कि औषधियों में और वनस्पतियों में होता है। तो ये जो अग्नि द्रव्य के रूप में उपस्थित हुआ, इसी को हमारे आचार्यों ने इसी बीज को आगे लेकर के वो धातु की व्याख्या के लिए प्रयुक्त किया जो है। और धातु का जो धातु के जो अलग अलग आयाम जो आयुर्वेद शास्त्र में उपस्थित हुए, धातु किस रूप में हुआ कि जो पुरुष धारण करता है, कोई चीज बाहर नहीं देखते। अपने यहाँ ऋषियों की एक बहुत सीधी कल्पना है, उनकी कल्पना नहीं है, बहुत सीधा उनका एक तरह से स्पष्ट है कि जो ब्रह्मांड में है वही हम में है, हम में और ब्रह्मांड में अंतर नहीं है। ज्ञान जो है वो सब में बराबर है। तो ज्ञान जिस तरह से द्रव्य की अवधारणा आगे होते होते हुई अग्नि और तेज के रूप में भी आई, अलग अलग भी उसके हैं, लेकिन अब यहाँ के विषय के साथ लेते हैं। तो वह जब आगे द्रव्य तत्व और भौतिक तत्व के रूप में, खनिज पदार्थ के रूप में, शरीर के तत्व के रूप में जब वो परिभाषित होने लगी, तो हुआ कि यह है कहाँ? तब वहाँ कहा गया कि नहीं, कि जो पुरुष धारण करता है वस्तुतः वही क्या है? वही शक्ति है, वही धातु है जो है। और अब वहाँ एक बात स्पष्ट कर दी गई कि नहीं, ये धातु जो है वह अलग अलग स्वतंत्र है, हर धातु अपने स्वभाव में अपने उसका स्वातंत्र है जो है। तो स्वातंत्र का जो मूल किसको माने? तब ये हुआ कि जो आत्म तत्व है जो है वही मूल धातु के रूप में है। तो इस तरह से ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा, त्रिधातु के रूप में बढ़ा। तो त्रिधातु का क्या समझे, जो व्यापक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में आया, तो कहा अग्नि जो है एक प्रधान धातु है, तो दूसरा क्या होगा? तो आदित्य के रूप में होगा, सूर्य के रूप में कहिए उसको,
और उसके बीच में क्या है, वो वायु के रूप में हुआ, फिर यही सप्त धातु के रूप में हुआ, नौ धातु के रूप में हुआ। अब इससे जो है रस शास्त्र की उत्पत्ति हुई पारंपरिक रूप से। हाँ, ये पहले जो है वैदिक परंपरा में आया, वैदिक परंपरा के बाद वेदांग में इसको और परिभाषित किया गया, क्योंकि जो यज्ञ की जो प्रतिष्ठा है, जो भूमि है, जो देव तत्व हैं, सबको सबके साथ जोड़ा गया कि यज्ञ का जो यूप माने दंड होगा उसका क्या क्या स्वरूप होगा, किस रूप से वो द्रव्य को, धातु को और रस को प्रमाणित करेगा। और फिर इसके साथ साथ जब हमारे उपवेद आए, जो है जब अथर्ववेद का विशेष रूप से जब एक तरह से व्याख्यान शैली आई, कौशिक सूत्र आया, तो ये सारे जो हैं ये वैज्ञानिक तत्व विस्तार के साथ इनको जो है प्रस्तुत किया जाने लगा। तब औषधियाँ और औषधियों में निहित तत्व और उनके गुण जो है वो स्पष्ट रूप से बताए जाने लगे। तो धीरे धीरे ये जो पारंपरिक ज्ञान शैली है भारत की, यही जो है हमें सब कुछ देती है, उन्हीं में सब कुछ छिपा हुआ है। अगर हम उसको ले करके और विज्ञान में प्रवृत्त होंगे तो हमारी जो चिंतन प्रक्रिया है वो और अधिक शक्ति के साथ हमें नए नए आविष्कारों के लिए उपस्थित करेगी, प्रेरित करेगी, अनुप्राणित करेगी। ये विषय कुछ इस तरह का है कि बच्चों के लिए बड़ा कठिन है, और आप जैसे विद्वानों के साथ बैठकर खूब व्यापक रूप से अलग चर्चा की जा सकती है। इसलिए मैं इसको अधिक उसमें न लेता हुआ जो है वो बात को समाप्त करता हूँ। एक आचार्य ने बहुत परामृत रस की चर्चा करते हुए कहा, अथर्ववेद में भी है और तैत्तिरीय संहिता में भी, सब में है कि यो वह शिवतमो रसस्तस्य भाजय तेह नः उसति रिव मातरः। तो ये है क्या कि सारा का सारा जो प्रार्थना की जाती है, हमारे ऋषि प्रार्थना करते हैं कि उस परमार्थ रस की प्रार्थना करते हैं जिसमें सारे रस अनुप्राणित करते हैं। कैसे, जैसे माँ अपने जो है अपने वात्सल्य रूप में अपने पुत्र को, अपनी संतान को देती है, वैसे ही उस परम से प्रार्थना की गई है कि सारे रसों की निष्पत्ति जो है हम में हो। इसलिए उसी रस देवता को प्रणाम करते हुए नमो रसानाम प्रभुवे रत्नानाम प्रभुवे नमः, नमः क्षणानाम प्रभुवे कलानाम प्रभुवे नमः। बहुत धन्यवाद आपके आमंत्रण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य शुक्ला जी। आपने बहुत ही सरल शब्दों में कैसे रसशास्त्र का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसे हमें संक्षेप रूप में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस पूरे कॉन्फ्रेंस के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं, जहाँ पे मेरा रोल मोर ऑफ वोट ऑफ थैंक्स का है। और वोट ऑफ थैंक्स के साथ साथ मैं कुछ इस टिप्पणी करते हुए इस समारोह को मैं समाप्त करना चाहूँगा। टिप्पणी ये है कि अधिकांश जब हम सोचते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा हो अथवा भारतीय रसायन शास्त्र हो, तो दो मत के लोग हमें प्रायः मिलते हैं। प्रथम मत, चाहे वो स्ट्रिंग थियरी हो या फिर थियरी ऑफ क्वार्क्स हो या फिर जो भी अल्ट्रा मॉडर्न साइंटिफिक थियरी हो, तो एक मत ये होना कि हमारे शास्त्रों में तो सब कुछ है, नया कुछ नहीं है। दूसरा मत ये है कि हमारा योगदान विज्ञान में केवल शून्य है। देयर इज अ पन इन दिस वर्ड, एक श्लेष अलंकार है इसमें कि हमारा योगदान केवल शून्य है। रसायन का भी जब बात आता है तो कुछ कुछ ऐसा ही है। अगर हम हाई एंट्रोपी एलॉयज की बात करें तो संभव है जिस त्रिधातु, उसके बाद उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते अगर हम पंचधातु और सप्त धातु और उसी क्रम में अगर हम जो एलॉयज मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया में आते हैं तो हम आंख बंद करके ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पे पंचधातु नामक हाई एंट्रोपी एलॉयज थे, क्योंकि आज हम डिजिटल इंफॉर्मेशन एज में हैं। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा, कम से कम जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस परंपरा पे रुझान रखते हैं और रुचि भी रखते हैं, तो उनके ऊपर एक और बड़ा दायित्व बन जाता है कि हाउ वी स्पीक विथ रिस्पेक्ट टू ऑल विथ एविडेंसेस। अगर हमारे पंचधातु वाकई में हाई एंट्रोपी एलॉयज हैं
तो उनका हमें टेस्ट करके जिस टर्मिनोलॉजी, जिस लैंग्वेज में हम हाई एंट्रोपी एलॉय को कैरेक्टराइज करते हैं, जब तक हम उसे उस लैंग्वेज में कैरेक्टराइज न करें तब तक ये हमारा कम्युनिकेशन केवल एक इको चेंबर बनकर रह जाएगा। दूसरी ओर गणित क्षेत्र में मैं इस उदाहरण लेकर के कह सकता हूं, लेकिन क्योंकि ये रसायन है तो मैं उस ग्रंथ का उल्लेख प्रत्यक्ष नाम लेकर के नहीं करूंगा, लेकिन संकेत किस पर है वो विद्वज्जनों को पता चल जाएगा। गणित क्षेत्र में एक ग्रंथ, तथाकथित ग्रंथ है वैमानिक शास्त्र। अब ये बहुत ही इसमें विवादास्पद ग्रंथ भी है, कई कारणों के कारण वो विवादास्पद है। उसी प्रकार हमारे रसायन शास्त्र में भी ऐसे तथाकथित ग्रंथ हैं जो विवादास्पद हैं। क्यों विवादास्पद है? क्योंकि उनमें ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस और ऐसे तकनीकियों का उल्लेख आता है जिसको पढ़ करके वाकई में बहुत ही अविश्वसनीय एक छवि उत्पन्न होती है। तो कहने का तात्पर्य, मेरा टिप्पणी को मैं छोटा रखूंगा, ये भाषण नहीं देने का, मेरा मंच में भाषण नहीं देने का रोल है, कि हमारे ऊपर एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि हम अपने पारंपरिक ज्ञान को सटीक रूप से जानें और उसको वर्तमान वैज्ञानिक भाषा में रूपांतर करने का प्रयास करें। तो ये ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यतः मैं अपने स्कूल के बच्चों को के लिए ही ये वाक्य बोल रहा हूं कि ये हमारे लिए कहना बहुत ही आसान वाली बात है कि हमारे यहाँ पे सब कुछ था। उस सब कुछ था, वाकई में था क्या नहीं था, इसका सटीक रूप से ज्ञान लेना ही इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम फिर सक्रिय रूप से अपने आप को तैयार कर पाएंगे। मैं सर्वप्रथम अपना आभार प्रकट करूंगा प्रोफेसर विजय शुक्ला जी के लिए, जिन्होंने कम समय पे हमारा आग्रह स्वीकार किया और इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने अपना भाषण भी दिया। उन्हें मैंने कई पूर्व मंचों में सुना और आज जिस शैली में उन्होंने रसशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में बताया वो मेरे लिए कम से कम नया था और इसके लिए आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना समय दिया। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमारे डीन R&D प्रोफेसर विकास दुबे हमारे इस कार्यक्रम के डे 1 से वो हमारे लिए सपोर्ट में रहे, तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मुख्य रूप से डॉक्टर अनुराधा एंड डॉक्टर घंटी जिन्होंने इस पूरी धारा कॉन्फ्रेंस की परिकल्पना की और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से हर दिन ऑन अ डे टू डे बेसिस माइक्रो लेवल, माइन्यूट लेवल तक सब कुछ बातों को मैनेज करते हुए IIT BHU के IK सेंटर को एक योग्य पात्र समझा कि धारा रसायन शास्त्र को यहाँ पे उसका निर्वहन हो सके। तो इसके लिए मैं आप दोनों को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और जब इस कॉन्फ्रेंस की परिकल्पना हो रही थी तो हमारे लिए जो पहले फर्स्ट स्टेप टू कंसल्ट एंड टू गेट द फर्दर इंफॉर्मेशन वो और कोई नहीं थे, डॉक्टर अभिजीत दीक्षित जी थे, IGNCA के अभी रीजनल डायरेक्टर, जिन्होंने, और प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी VC संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी जो कि हमारे सत्र के एक मुख्य वक्ता भी थे, इनको हमने एक बहुत ही मुख्य कार्य सौंपा था और जिसका निर्वहन भी उन्होंने बहुत ही उच्चतम तरीके से किया। उसके लिए अभिजीत जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह अगर हम अभी अभिजीत जी से मिले थे तो दोपहर में ही हमें ज्ञान प्रवाह जैसे संस्थान के से अभिमुख होने का एक अवसर प्राप्त हुआ। और जैसे ही मैंने फ़ोन पे, पहली बात तो फ़ोन पे हुई थी, डॉक्टर नीरज पांडे हमारे समक्ष हैं, उसके उपनिदेशक, और पहले फ़ोन कॉल से ही वो इतने तत्पर थे इस कॉन्फ्रेंस में योगदान देने के लिए, और वाकई में उनका योगदान बहुत ही अहम रहा है इस कॉन्फ्रेंस को कुछ सत्रों को एकत्रित करने में। और उन्होंने जिन मनुष्यों के साथ हमारा संपर्क बनाया उसके कारण हम बहुत ही लाभान्वित हुए। इसलिए नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपने अभी इस समापन समारोह में पधारा उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के साथ चंद्रभूषण झा जी, जिनके पुस्तक को पढ़ करके पता नहीं कितनी पीढ़ी के लोग रसशास्त्री बने हैं। दुर्भाग्यवश क्या हुआ था कि हम आपसे पहले संपर्क नहीं कर पाए, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य है कि आप समापन समारोह में आए और हमारे समक्ष आप अपना समय बिता रहे हैं। उसी के साथ जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारे जो इस पूरे 2 दिन के कार्यक्रम में ऑडियंस के रूप में जो हमारे साथ पहले दिन से बने रहे, IPNS स्कूल के
प्रिंसिपल शर्मा साहब, उसके टीचर्स जो हमारे 2 दिन में हमारे साथ लगे रहे, और साथ ही आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आए। और आशा करता हूं कि आप इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस से लाभान्वित हुए होंगे। देश भर से हमारे जो स्पीकर्स, एक्सपर्ट्स, पैनलिस्ट्स जो आए थे, उन सारे एक्सपर्ट्स और पैनलिस्ट को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारों की जब तक ये जन भागीदारी आप ही के माध्यम से होगी, और धारा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है कि जन भागीदारी इसमें, और ये जन भागीदारी पत्रकार और मीडिया के माध्यम से ही हो पाएगा। और मीडिया को प्रतिनिधित्व देते हुए हमारे समक्ष दैनिक जागरण के शैलेश जी हैं, उनको भी मैं उनको संकेत करते हुए पूरे पत्रकार बंधुओं को मैं आभार प्रकट करता हूं। हमारे इसी कार्यक्रम में ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर्स के रूप में ज्ञान प्रवाह है और IGNCA है, जिसके लोगों से आप ऊपर में देख रहे होंगे। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे मीडिया पार्टनर्स भी हैं जो इस धारा जैसे एपिसोड को सक्षम बनाने में योगदान देते हैं, और इसके कई आयाम भी हैं। एक होता है मंच से भाषण देना और सभागार में जो भी उपस्थित हैं उस भाषण को ग्रहण करना, लेकिन अगर सरकार इन सब चीज़ों में इतने एफर्ट दे रही है तो ये लक्ष्य और उद्देश्य बनता है कि ये देश भर में जाकर के फैले, और ये आज सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही सरल हो चुका है। तो इस सोशल मीडिया में विभिन्न प्रकारों से प्रचार और प्रसार करने हेतु हमारे जो मीडिया पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, मुख्य रूप से संगम टॉक्स, प्राच्यम, बृहत और अथर्व फोरम, इन सबको भी मैं धारा की ओर से और IIT BHU के IKS सेंटर की ओर से आभार प्रकट करता हूं। हमारे संस्थान के कुछ ऐसे विभाग जिनके योगदान के बिना ये 2 दिवसीय कार्यक्रम बिल्कुल ही संभव नहीं हो सकता था। प्रथम तो ये जो ऑडिटोरियम में जहाँ बैठे हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, उसके विभागाध्यक्ष को मेरा हार्दिक नमन और आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस फैसिलिटी को हमें दिया, और साथ ही TLC के चेयरमैन डॉक्टर श्याम कमल और TLC के हमारे सारे स्टाफ, जिनमें से अभी विपिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कल हमारे साथ सुनील जी भी जुड़े हुए थे, जो TLC के सारे कार्यभार को बहुत ही सटीक रूप से और सफलपूर्वक निर्वहन करते हैं उसका। तो TLC और TLC को भी मेरा आभार प्रकट करता हूँ मैं। उसी के साथ साथ जो हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड्स हैं, उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत सारे अप्रूवल्स को बहुत ही स्मूथली अप्रूव कराया, उसके लिए मैं बहुत उनको आभार प्रकट करता हूं। और मुख्य रूप से ये सब जैसे मैंने शुरू किया था कि डे 1 से हमारे डीन साहब जुड़े हुए हैं। अगर ये डायरेक्टर का भी सपोर्ट नहीं होता इसमें, क्योंकि इंस्टीट्यूट जब पार्टिसिपेट करता है तो इट हैज़ टू बी इन ऑल फुल फॉर्म, ऐसा नहीं कि एक केवल इंडिपेंडेंटली कोई अपने मन से काम कर रहा है। तो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई डीप फेल्ट ग्रैटिट्यूड टू ऑल्सो आर ऑनरेबल डायरेक्टर प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन, जिन्होंने इस परिकल्पना को बहुत ही सांत्वना दी, उसको आगे बढ़ाने का एक प्रोत्साहन दिया, उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ अगर मेरी जो स्टूडेंट्स की टोली है कम है, मुख्य रूप से अगर मैं नाम लेना चाहूँगा, एक एक का नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन SCS के मेरे क्षितिज हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे रूप से इसका लॉजिस्टिक को मैनेज किया था, डिजिटल लॉजिस्टिक को। उसमें मेरे साथ जुड़े थे एक स्टूडेंट ओम कश्यप, जिसको मैंने रात भर बहुत तंग करके बहुत सारी चीज़ों को बनवाया, और मेरे स्टूडेंट्स विनीत, पूनम और मनीष, नव्या जिन्होंने संचालन किया था, और जो हमारे मंगलाचरण और अभी राष्ट्रगान के लिए भी हमारे जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे उनको भी, और जिन स्टूडेंट्स को मैंने छोड़ा है उनसे मैं क्षमा चाहूँगा अगर मेरी स्मरण में उनके नाम नहीं आए तो, क्योंकि बिना स्टूडेंट्स के सपोर्ट के ये मैं अकेले आदमी का बिल्कुल बस की बात नहीं है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।